Assalamu alaikum students, I hope all of you are fine. So today we are going to read chapter number 5 of grade 7th history, that's the coming of the Mughal. It's a very interesting chapter as we are going to learn about the arrival of the Mughals. So let's start with Babur. Our main focus in this class will be on Babur. For the past 20 years, Babur, the king of Kabul, had dreamt of conquering Hindustan. Babur had inherited the state of Farghana in Central Asia from his father Umar Sheikh Mirza. He was only 12 years old at the time and soon lost his kingdom and his ambitious relatives. तो बाबर जो काबुल का रूलर था उसका एक बहुत पुराना ड्रीम था, उसका एक बहुत पुराना ख्वाब था और वो था हिंदुस्तान को कॉन्कर करना, इंडिया को कॉन्कर करना। इंडिया को कॉन्कर करना कोई आसान चीज़ नहीं थी, आसान बात नहीं थी। जब बाबर 12 इयर्स का था उस टाइम पर उसने अपना किंगडम खो दिया बाय सम ऑफ हिज ओन एम्बिशियस रिलेटिव्स. He turned to Kabul and conquered it in 1504 but was never to regain his home in Farghana or Bukhara or Samarkand. Since the conquest of Kabul, Babur had dreamt of victory over Hindustan. तो बहुत पुराना ख्वाब था बाबर का और वो था हिंदुस्तान को फतह करना, जिसके बारे में उसने खुद लिखा है in his memories. From the time I conquered the land of Kabul till now, काबुल को कॉन्कर करने से लेकर अब तक, I have always been bent on subduing हिंदुस्तान. शुरू से उसका ख्वाब था, उसका एक ड्रीम था हिंदुस्तान को कॉन्कर करना. However, I was prevented. प्रिवेंट क्यों किया? हिंदुस्तान को, इंडिया को कॉन्कर करना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर्स रूल करते आए थे. खिलजी डायनेस्टी थी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे रूलर थे, फिर स्ट्रॉन्ग लोधी डायनेस्टीज़ थी जिनको कॉन्कर करना, जिनको डिफीट करना आसान नहीं था. At length, the obstacles were removed. अब उसे लगता है कि obstacles remove हो गई and he gathered an army and marched towards Bajaur, Swat and then advanced to Bhera. Bhera कहाँ है? On the west of river Jhelum. Babur, he advanced up to river Chenab and sent an ambassador to the Lodhi Sultan. Lodhi dynasty इस टाइम पे रूल कर रही है, लास्ट लोधी रूलर है and his name was Ibrahim Lodhi, demanding the territories which he felt belonged to the Turks. He received no reply. So Babur, he captured Bhera, Kushka and the territories near Chenab and then he returned to Kabul. कुछ एरियाज को कॉन्कर करके वापस काबुल चला गया. In 1524, he reached Lahore and capturing it, left it to Alauddin Lodhi to rule as his governor. Daulat Khan Lodhi retook Lahore and sent Alauddin back to Kabul as a refugee. Now Babur decided to teach Daulat Khan a lesson and set out in 1526 to become the emperor of Hindustan. पहले बाबर आया, उसने कुछ एरियाज को इन्वेट किया, अपने लोगों को गवर्नर बनाया और वापस चला गया. उसकी एब्सेंस में दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी के अंकल थे. ऑल्दो के ही डिड नॉट हैव गुड रिलेशन विद इब्राहिम लोधी, ये इब्राहिम लोधी का राइवल था और बाद में इसने खुद ही बाबर को इनवाइट किया था टू डिफीट इब्राहिम लोधी. उस टाइम पे उसने अलाउद्दीन लोधी को डिफीट किया और वापस काबुल भेज दिया and he got the rule of Lahore. Babur took advantage of this condition of the subcontinent at that time. सबकॉन्टिनेंट की कंडीशन क्या है? यूनिटी नहीं है, हर स्टेट का, हर जगह का अलग अलग रूलर है. Babur took advantage of the condition of the subcontinent at that time. सबकॉन्टिनेंट की कंडीशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, आपस में यूनिटी नहीं है, हर स्टेट का अलग अलग रूलर है. The Delhi Sultans had lost their hold on most of northern India except from Delhi, Agra and the Doab. Doab का मतलब होता है the land between the rivers. तो यहाँ पे we are talking about the land between the Ganges and the Jamuna river. तो कुछ एरियाज दिल्ली सुल्तान्स के पास है, बाकी सब में इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो अपना रूल कायम करके बैठे हुए हैं. The Punjab had became independent. पंजाब भी इंडिपेंडेंट हो गया है under दौलत खान लोधी, while Sindh, Multan, Jaipur, Bengal and Orissa had also become independent kingdoms.
थ्रेटेंड बाय इब्राहिम लोधी द रूलर ऑफ दिल्ली, जो मेन रूलर था इब्राहिम लोधी दिल्ली और आगरा का, उसने थ्रेटन किया, उसने डराया, जिसकी वजह से दौलत खान सेंट इनवॉइस टू बाबर, उसने बाबर को मैसेजेस भेजना शुरू कर दिए, इनवाइटिंग हिज हेल्प, उसकी हेल्प लेने के लिए अगेंस्ट इब्राहिम लोधी, कीपिंग इन योर माइंड दैट इब्राहिम लोधी एंड दौलत खान लोधी, दे आर दी टू people from the Lodi dynasties, they are the relatives, but they are the rivals as well. Rana Sangha of Mewar was a powerful Rajput ruler who favored the invitation by Babur because he thought that the later having a descendant of Tamur would defeat the Lodhis, plunder and return to Kabul. तो राणा संघा जो था उसने भी बाबर को इनवाइट किया और उसको फेवर किया, क्योंकि उसे लगता था कि बाबर आएगा, लोधीस के साथ लड़ेगा, लोधीस को हराएगा और वापस काबुल चला जाएगा. राणा संघा वुड देन टेक द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड आगरा फॉर हिमसेल्फ, और उसके बाद राणा संघा की मौजें लग जाएंगी, वो बादशाह बन के बैठ जाएगा, क्योंकि बाबर तो बेवकूफ़ है, वो आकर लड़कर लोधीस को हरा के वापस चला जाएगा. However, they were all proved wrong. लेकिन इन सब की उम्मीदों पे बाबर ने पानी फेर दिया, क्योंकि बाबर का तो अपना ख्वाब था, अपना ड्रीम था हिंदुस्तान को कॉन्कर करना. Organized his army in late 1525. फिर बाबर ने अपनी आर्मी जमा करनी, उन्हें ऑर्गेनाइज करना शुरू किया. And in the spring of 1526, he decided to descend from the heights of Afghan mountains and conquer the plains of Hindustan. और 1526 में वो अफ़गानिस्तान से निकलकर इंडिया को, हिंदुस्तान को कॉन्कर करने के लिए आ गया. 2 years earlier, he had already conquered Punjab and appointed a governor who was challenged by Daulat Khan Lodhi, and Babur now had to reassert his rule. 2 साल पहले वो ऑलरेडी पंजाब को फतह कर चुका था, लेकिन दौलत खान लोधी ने उसके गवर्नर को चैलेंज किया था, सो बाबर अपना रूल वापस लेने आया था. इब्राहिम लोधी हैड ऑलरेडी गैदर्ड अ लार्ज आर्मी ऑफ मेन एंड एलिफेंट टू फेस बाबर्स एडवांसिंग फोर्स. दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी ने भी पूरी तैयारी की हुई है, उसने भी बहुत बड़ी फौज और बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स तैयार किए हुए हैं ताकि वो बाबर का मुकाबला कर सकें. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 2 फोर्सेस आमने सामने हुई, एक तरफ बाबर और दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी. इब्राहिम लोधी जिसके पास लार्ज आर्मी है और बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, दूसरी तरफ बाबर है जिसके पास 10,000 ट्रूप्स हैं, कैनन्स हैं जो प्रॉपरली उसने लाइन अप की हुई हैं इन द प्लेन्स ऑफ पानीपत. अलॉन्ग विद इट बाबर के पास इंटरनल सपोर्ट है. बाबर को इनवाइट किया है दौलत खान लोधी ने, बाबर को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है राणा संघा. सो मैनी इंटरनल पीपल ऑफ लोधी डायनेस्टी, इब्राहिम लोधी के अपने लोग बाबर को सपोर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट हिम. तो इब्राहिम लोधी की लार्ज आर्मी का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि मैनी ऑफ देम वर सपोर्टिंग बाबर. द बैटल just started just as the sun was rising. Babur was a brilliant military leader. He arranged his men, cannons and cavalry in such a way that by midday his troops had routed Ibrahim Lodhi's army, had laid claim to the throne of Hindustan. बेटे यहाँ पर देखो, इब्राहिम लोधी के पास एलिफेंट्स थे. इब्राहिम लोधी की जो आर्मी है, जो उसके सोल्जर्स हैं, दे वर ट्रेवलिंग ऑन एलिफेंट्स. एलिफेंट्स कैसे चलते हैं? वेरी स्लो, बहुत आराम से मज़े ले लेके झूम झूम के वो चल रहे होते हैं. दूसरी तरफ हमारे पास बाबर है. बाबर के पास हॉर्सेस थे. हॉर्सेस बहुत तेज़ भागते हैं. बाबर के जो ट्रूप्स थे, उसके सोल्जर्स थे, दे वर ऑन हॉर्सेस. ऑन द अदर हैंड बाबर के पास कैनन्स थी, तोपें थीं. जब बाबर ने अपनी तोपों से, अपनी कैनन से फायरिंग स्टार्ट की तो एलिफेंट्स डर के वापस पीछे की तरफ भागे. और जब वो पीछे की तरफ भागे तो बहुत सारे इब्राहिम लोधी के ही सोल्जर्स उन एलिफेंट्स के पैरों के नीचे आके कुचल गए और कुचल के मरे गए. दिस लेड टू दी डिफीट. दिस लेड टू दी ईजी विक्ट्री ऑफ बाबर. बाबर की विक्ट्री की मेन रीज़न उसके वॉर टैक्टिक्स थे, क्योंकि उसके पास मॉडर्न वेपन था, एडवांस टैक्टिक्स थी. और मिड डे तक वो हिंदुस्तान का थ्रोन जो था उसका रूलर बनने वाला था.
द मुगल एम्पायर हैड कम टू स्टे। जैसे राणा संगा को लग रहा था कि बाबर आएगा, डिफीट करेगा, चला जाएगा, तो उसका ख्वाब पूरा नहीं हुआ। ज़हीरुद्दीन बाबर ही केम टू स्टे और मुग़ल डायनेस्टी का स्टार्ट हो गया इंडिया में। द डिफीट ऑफ द राजपूत चीफ राणा संगा। राणा संगा का तो ख्वाब था कि बाबर आएगा, लोधी डायनेस्टी को ख़त्म करेगा और वापस चला जाएगा रूल राणा संगा को देकर। तो राणा संगा का ये ड्रीम पूरा नहीं हुआ, यह ख्वाब पूरा नहीं हुआ, तो उसने बाबर के अगेंस्ट फाइट करने का प्लान बनाया। एंड बाबर हैड टू रिकंसोलिडेट हिज न्यूली एस्टैब्लिश्ड एम्पायर बाय फेसिंग वन मोर एनिमी चैलेंजिंग हिज पावर। तो राणा संगा बाबर की ही पावर को चैलेंज करने आ गया है। राणा संगा ऑफ मीवर, अ वर्दी राजपूत फो, सरेंडर्ड Babur's troop with his much larger force. Babur had to rise the spirit of his troops who were losing heart, and he did so with an inspiring speech. फिर बाबर की और राणा संगा की फोर्सेस की जो वॉर हुई उसमें अगेन इट प्रूव विक्टोरियस फॉर बाबर। बाबर दोबारा से जीत गया और उसके बाद राणा संगा की कभी हिम्मत नहीं हुई कि बाबर के रूल को चैलेंज करे। लेकिन यहाँ पर बस नहीं हुई, उसके बाद महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी का भाई, उसने भी बाबर पे अटैक करने का प्लान बनाया। ही गैदर्ड अफगान एंड बंगाल आर्मी एंड अटैक बाबर फोर्सेस। लेकिन यहाँ पर भी बाबर ही डिफीटेड देम एंड बिकेम द अनडिस्प्यूटेड रूलर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का अकेला बादशाह बन गया। लेकिन उसने ये पोजीशन सिर्फ 1 साल तक उसके पास रही। दी लॉन्ग कैंपेन्स, इतनी सारी जो लॉन्ग वॉर्स हो रही थी, एंड दी हॉट इंडियन क्लाइमेट अफेक्टेड बाबर। बाबर आया था अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान के माउंटेन्स से, जहाँ का क्लाइमेट बहुत कूल और बहुत प्लेजेंट था, जबकि इंडिया में बहुत गर्मी होती है, विच अफेक्टेड बाबर्स हेल्थ एंड ही फेल इल एंड डाइड इन लाहौर ऑन 26 दिसंबर 1530 एट द एज ऑफ 48। ही वॉज बरीड इन हिज बिलवेड काबुल। काबुल में ही उसका फ्यूनरल हुआ और उसको दफन किया गया। उसके बाबरी, अ मेमोयर ऑफ बाबर। Babur's memoir are a delightful tribute to the refreshing honesty and honor of the founder of the great Mughal dynasty. Despite being emperor of Hindustan, Babur pined for his Central Asian homeland and often spoke of the sweetness of its musk and melon. The cool breeze and fresh mountains could not be compared to the heat and dust of the subcontinent. Babur's character is reflected in his autobiography as being a kind-hearted monarch who cared for the welfare of his people. He was very generous, and when the conquest of Delhi brought huge wealth to him, it was divided among all ranks of his army, and a good portion of it was sent to holy cities of Makkah and Medina. At the same time, he was optimistic and courageous, and had the physical strength of a lion. He faced with adversity. Babur always took the path of determination, and his military strategies was able to defeat his foe. Babur spent his last year in organizing the administration of the provinces. He did not deprive the original Hindus and Muslim landowners of their land if they were loyal to him, introducing a feudal system. Babur divided his territory into a large number of jagirs or states and distributed them among the begs or nobles who had come with him from Kabul. These jagirdars were made responsible for the civil administration and revenue collection for their areas. बेटा फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर ऑफ बाबर, कि बाबर का कैरेक्टर कैसा था। इनिशियली यहाँ पे स्टार्ट की लाइन से बताया गया कि ही मिस्ड हिज होमलैंड, उसका होमलैंड जो अफगानिस्तान काबुल की तरफ था, वो अक्सर उसकी बात करता था, वहाँ की कूल ब्रीज और फ्रेश माउंटेन एयर को वो मिस करता था और उसे कंपेयर करता था विद द हीट एंड डस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। बाबर बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड था, अपने लोगों की वेलफेयर का ख्याल करता था। एट द सेम टाइम ही वॉज जेनरस, एंड जो भी उसकी कॉन्क्वेस्ट की मनीज होती थी वो डिवाइड करता था अमंग हिज आर्मी, और उसका एक ह्यूज पोर्शन मक्का एंड मदीना होली सिटीज़ में भी भेजा जाता था। ही वॉज अ courageous lion एंड ही वॉज क्वाइट डिटर्मिन्ड। फिर
The last paragraph is about the administrative qualities of the बाबर. बाबर ने अपने लास्ट ईयर को ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंसेस. उसने मुस्लिम्स और हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो इंडिया में पहले से थे उनसे उनके लैंड्स नहीं लिए इफ़ दे वर लॉयल टू हिम. He introduced the feudal system in India और अपनी टेरिटरीज को डिवाइड किया in a large number of जागीर्स और states and distributed them among the nobles. बहुत से नोबल जो उसके साथ काबुल से आए थे. These जागीरदार्स they were responsible for the administration of the particular province और वहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन के लिए. रेवेन्यू कलेक्शन का मतलब है टैक्स लेने के लिए. सो स्टूडेंट्स हम यहीं पे स्टॉप करेंगे. आई होप आपको बाबर के बारे में समझ में आ गया होगा. हम बाबर का से ऑनवर्ड उसके सक्सेसर हुमायूं के बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. कोई चीज़ पूछनी है, कोई क्लियर नहीं हुआ तो यू कैन राइट इन दी चैट बॉक्स इन दी कमेंट्स. थैंक यू. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.